سی پی آئی ایم کے جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری نے سپریم کورٹ میں دفعہ 370 کی منسوخی کو چیلنج کردہ عرضی کی جلد سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماعت میں تاخیر سے بی جے پی حکومت کو جموں کشمیر میں عوام مخالف قوانین نافذ کرنے کے لیے کافی وقت مل رہا ہے۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یچوری نے فلم دا کشمیر فائلز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وادی میں صرف کشمیری پنڈت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں، سکھوں اور دیگر طبقے کے لوگوں کو بھی تکالیف جھیلنی پڑی ہیں۔ یچوری نے فلم کو ملک میں لوگوں کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنے کا آلہ قرار دیا۔ یچوری نے کہا ہم کشمیر کو ہندوستان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن الحاق کی شرائط کو مرکزی حکومت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جموں و کشمیر ہمارے دیش کا حصہ ہے، لیکن جس آدھار پر ان کو جو ہے جوڑا گیا دیش کے ساتھ، وہ ایشورنسز اور وہ پرومسز کا پورے کی پوری 100% امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ سب سے آگے کرٹیک ہم تھے جب اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی، جب پرانی کانگریس کی سرکاریں بھی تھے، اور اس کے چلتے ہوئے ہم نے کہا کہ اس کے وجہ سے آپ یہ جو ڈسکنٹینٹ اور ایلینیشن جو پیدا کر رہے ہو، یہ ہمارے ملک کے ہت میں نہیں ہے، اس کو سدھارنا۔ آج بھی ہماری گزارش یہی ہے کہ یہاں کی عوام کے ساتھ اپنے ان کی سمسیاؤں کے اوپر، ان کی پرابلمز کے اوپر اور ان کی جذبات کے اوپر، اور جو جائز ہے، ہمارا ماننا ہے یہ جائز ہے کہ یہ ان شرطوں کے آدھار پر جموں کشمیر جڑی انڈیا کے ساتھ، اور ان شرطوں کو آپ لاگو کریے۔ یہی فوٹ ڈالتے ڈالتے یہاں تک کہ کشمیری فائلز کے بارے میں جو آج صورتحال مطلب پیدا ہوئی ہے، اس کے چلتے ہوئے پوری ایڈیٹرز گلڈ، آپ کے میڈیا کے ایڈیٹرز گلڈ کے سب سے پرمکھ موسٹ امپورٹنٹ ایڈیٹرز نیشنل ڈیلی کے، وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دے کے اس کے اوپر کنسرن جتایا کہ اس طریقے سے پولرائزیشن جو آپ کر رہے ہو یہ خطرناک ہے۔ دیش کی عوام کے بیچ میں یہ جو پولرائزیشن جو کروا رہے ہو، اس سے جو ہے نہ دیش کی ایکتا اکھنڈتا، نہ اپنی پروگریس جو ہے وہ سمبھو ہے۔ اب کشمیر فائلز کا اب بتا دیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر چاہے تو آپ فلم بنا لو، پردھان منتری نے خود کہا آپ دوسرا فلم بنا لو۔ ارے بنا تھا ایک آپ کے گودرا اور گجرات کے پورے رائٹس کے اوپر، یاد ہوگا پرزانی آ کر کے، اس کو دکھانے دیا آپ نے؟ فلم بنا تو لیں گے لیکن دکھانے دو گے آپ، یا وہی دکھاتے ہو جو آپ چاہتے ہو، آپ کی ایک طرفہ پرچار۔ سی پی آئی ایم نے کل سری نگر میں سیتارام یچوری کی صدارت میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی نے قرارداد کی تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ اراضی قوانین میں ترامیم نے لوگوں میں عدم تحفظ پیدا کر دیا ہے۔ تارگامی نے کہا کہ حد بندی کمیشن نے حکمران پارٹی کے حق میں حلقوں کی منمانی تبدیلی کی تجویز دی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری اور بگڑتی معاشی صورتحال پر بات کی گئی ہے۔ کے اندھیرے میں قانون کو بدل سکتے ہیں، توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہم کہے دیتے ہیں آج پورے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ آف انڈیا کو کہ آپ جموں کشمیر کی تاریخی حیثیت کو، شناخت کو، آئیڈینٹی کو کتنا بھی زور لگائے آپ اس کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ تاریخی سچائی ہے جس کو ہماری پارٹی سی پی آئی ایم ہر سطح پر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، رکھ رہی ہے، اور آئندہ بھی اس کی وکالت کریں گے۔ آئین کے 371 کے تحت ہمارا ہمسایہ ریاست ہے ہماچل، وہاں اب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہم نے، اگر یہاں ڈیولپمنٹ کے لیے 370 ہٹانا ضروری ہے، لینڈ لاز کو ہٹانا ضروری ہے، بھائی ہماچل میں آپ ایسا سوچتے کیوں نہیں؟ کیا ان کو ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ سینسس ہوگا ملک بھر میں، ڈی لمیٹیشن پروسیس ہوگا تو ہم بھی ملک کے ساتھ ہی یہاں ڈی لمٹ کر لیں گے کانسٹیچوئنسیز کو۔ جہاں ہم ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہاں بی جے پی سرکار کو یہ راس نہیں آتا، کہا کیوں جائیں گے آپ؟ اور یہاں ڈی لمیٹیشن شروع، ڈی لمیٹیشن کا قانون کہاں سے آ گیا؟ ری آرگنائزیشن ایکٹ کے دائرے کے اندر۔ اب کیا ہے ری آرگنائزیشن ایکٹ؟ جموں کشمیر کو توڑنا۔
बी जे पी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म की मुखालफत करने वाले ही कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के जिम्मेदार हैं। सोफी ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 90 की दहाई में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन का जिम्मेदार ठहराया। सोफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर समेत दीगर लीडरों ने टैगोर हॉल श्रीनगर में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर फारूक साहब यहाँ हमारे सीएम थे, उन्हीं की कारस्तानी की वजह से और हुर्रियत के साथ मिलके कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है। तो वो जो फिल्म बनी है, मैं उसकी जो है बताना चाहूँगा कि वो फिल्म खाली पंडितों के लिए बनी है, तो उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी को एतराज़ है, बींगे में मुस्लिम मैं हूँ सोफी यूसुफ, मैं भी अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए फिल्म बना सकता हूँ। कौन मुझे रोक सकता है? क्योंकि दुनिया के सामने सारा नक्शा हमारे कश्मीर घाटी का आना चाहिए, तो इसलिए उस फिल्म के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में नवंबर-दिसंबर में इंतखाबात के बिगुल बजेगा। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। इन बातों का इजहार बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कुपवाड़ा TRC में एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौल का कहना था कि कश्मीर फाइल्स एक हकीकत है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हकीकत सुननी चाहिए। कौल ने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया वो पिछली सरकारों की देन है। अब्दुल रहमान लोन और जावेद कुरैशी ने भी खिताब किया। सारी जो प्रॉब्लम्स है वो तो उस समय की सरकार है, उन्होंने क्रिएट की है, वो जिम्मेवार है। अब 19 तारीख को माइग्रेशन होती है तो 18 तारीख तो फारूक साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो एक दिन में थोड़ी होता है ये तो कहीं महीनों से, कहीं सालों से ये चल रहा था। जैसे यहाँ भी आपने सुना कि 86 से 87 से ये चल रहा था। इसलिए ये जो चल रहा था उसका एक बार वो जो फोड़ा था वो फोड़ा फूट गया, लेकिन फोड़े को बढ़ने दिया वो तो इन्हीं सरकारों ने दे दिया। एक बात कौल साहब के जो वजीर दाखिला है उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पर आपको रियासत का दर्जा इलेक्शन मिलेगा, वापस मिल सकता है। तो आप कौल साहब क्या कह रहे हैं कि कौल साहब वो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, दोनों हाउसों में कहा है, इसलिए वो ज़रूर देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सरकार जो है वो ज़रूर दे देगी। जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शन में आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपना खाता खोल सकती है? ज़रूर खोलेगी। मैं तो कहा ना, DDC चुनाव में हमने खाता खोला है, तो असेंबली चुनाव में क्यों नहीं है? असेंबली चुनाव में भी हम खाता खोल। कश्मीरी पंडितों की तंजीम रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन दायर की है, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर मजालिम की जांच कराने और कसूरवारों को सजा देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई दरख्वास्त में कहा गया है कि 33 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के फसादात की तहकीकात कराई है और उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले में भी ऐसा करेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग करी है कि चार हमारी जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें चार मुख्य मांग थी। एक थी कि केसेस को जम्मू कश्मीर से बाहर ले जाया जाए क्योंकि आतंकवाद का डर है। दूसरा, स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाए जो अनगिनत केसेस हैं, क्योंकि किसी में भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई, किसी में भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। स्टेटस अपडेट मांगा जाए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से। तीसरा, हमने कहा था एक SIT फॉर्म करी जाए या NIA को केसेस दे दिए जाएँ ताकि इनमें इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो सके, फास्ट ट्रैक हो सके, मॉनिटर हो सके। और चौथा, यासीन मलिक जिसने अनगिनत हिंदुओं को मारा है और एयरफोर्स के अफसर्स को मारा है, बिट्टा कराटे जिसने अनगिनत हिंदुओं को मारा है, उनके केसेस फास्ट ट्रैक CBI करे। जैसे पहले भी हो चुका है सज्जन कुमार के केस में, दिल्ली हाई कोर्ट ने मैटर को काफी साल के बाद सुना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मैटर रीओपन हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को भी उम्मीद है कि इस मैटर में भी हमको दोबारा से जस्टिस मिल सके। जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अपने ऑर्डर में 24/7/2017 का, वो ग्राउंड जो है वो टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का रोल है। वो आके कह सकते हैं कि FIR आप री इन्वेस्टिगेट करके कहें कि भाई एविडेंस मिल ही नहीं रहा है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन प्रिजम्पशन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन है, प्रिजम्पशन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट से, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। और उसी एक केस में हिंदू और कश्मीरी माइग्रेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन करके पिटिशन को ट्रांसफर किया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में फॉर री इन्वेस्टिगेशन और कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ SIT टीम।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर रमन भल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सिर्फ कांग्रेस ही एक मुतबादिल है। उनका कहना है कि बीजेपी लोगों के साथ किए गए वादे पूरे करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार देने का वादा पूरा करने में भी बीजेपी नाकाम हुई है। महंगाई, कीमतों में इजाफे और बेरोजगारी की बढ़ती शरह के खिलाफ कांग्रेस ने जम्मू में एहतजाज किया। यह एहतजाज पार्टी हेडक्वार्टर से शुरू हुआ। उन्होंने सिटी सेंटर की जानिब जाने की कोशिश की मगर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। एहतजाजियों को जम्मू शहर के दीगर इलाकों की जानिब जाने से रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही रुकावटें खड़ी कर दी थी। इस ढंग से जम्मू कश्मीर में चाहे डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा यहाँ पे है, रोष है कि किसी भी साथी के साथ, किसी हल्के के साथ इंसाफ नहीं हुआ। वहीं पे आज बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर 40% यहाँ पे आंकड़ा पहुंचा है और इस महंगाई के मार के 80-80 पैसे रोज 2-2 दिन करके कीमतों में बढ़ोतरी करना और इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये हमारे आंकड़े नहीं कि 10,000 करोड़ का फायदा सरकार ने यहाँ पे लिया है। आज जरूरत है लोगों को राहत देने की, जिसके माध्यम से आज सरकार हर फ्रंट में जिस ढंग से फेल हुई, इस मौके पर भी यहाँ पे फेल हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल ने कहा कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए पार्लियामेंट और उसके बाहर 370 की मनसूखे का ढोल बजा रही है। कमाल ने कहा कि बढ़ती महंगाई से जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी परेशान हैं। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। तनवीर सादिक को पार्टी का चीफ तर्जुमान मुकर्रर करने पर उन्हें तहनीत पेश की गई। जो इस वक्त मसला सरगर्म है वो है कि मरकजी सरकार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर बार बार कह रही है और थकती भी नहीं है कहते कहते कि दफा 370 और 35A जो मनसूख की गई 5 अगस्त 2019 में मरकजी सरकार ने, उससे जम्मू कश्मीर में तमीर तरक्की और खुशहाली की राहें खुल गई हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है और बदकिस्मती है कि एक आईनी मद जो साल पहले हिंदुस्तान की मुंतखबा सरकार ने सफ़े अव्वल के लीडर जिन्होंने आज़ादी यहाँ लाई, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला, उन्होंने उस वक़्त के रहनुमा, उस वक़्त के नुमाइंदे जिनकी सरबराही खुद हज़रत शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला मरहूम करते थे, वैसे थे वज़ीर आज़म की। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म, मरकजी वज़रा और बीजेपी द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म की तशहीर करके दो तबकों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हांजूरा ने फिल्म को प्रोपेगेंडा से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म में मुस्लिम बरादरी को दहशतगर्द करार दिया गया, जो सरासर गलत है। हांजूरा ने ताहम मिलिटेंसी से कश्मीरी पंडितों को दरपेश आए मुश्किलात पर इजहार अफसोस किया। वक्त जो प्रमोट किया जा रहा है इस कश्मीर फाइल्स को बीजेपी की तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हमारे होम मिनिस्टर की तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे नफरत बढ़ेगी, इससे कोई आपस में भाईचारा जो है वो उसको ज़ख्म पहुंचेगा। इस बात का बेहद अफसोस है हमें कि जो 1990 में हुआ, जब हमारी जो पंडित बरादरी यहाँ से चली गई, तो उसका हमें बड़ा अफसोस है। नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो फिल्म बन गई है, जो बनाई गई है, वो इस पे सच्चाई पे आधारित नहीं है। उसमें वो सिर्फ यही दिखाया गया है कि यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं वो सारों को इनको लेबल दिया गया है मिलिटेंटों का। यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं, आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भाईचारा जो है अभी भी कायम व दायम है। यहाँ अगर कोई पंडित जो यहाँ रहता है, किसी पंडित भाई की मौत होती है तो उसका 10 संस्कार इस वक्त भी यहाँ के मुसलमान कर रहे हैं। यहाँ के जो मंदिर है, यहाँ पे जो मंदिर है उनकी रखवाली यहाँ के मुसलमान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ भाईचारा भी कायम है और इस फिल्म की वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि नफरत फैलाई जाए हिंदू और मुसलमान में, पंडित और मुसलमान में। हम ऐसा नहीं होने। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक मिलिटेंसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाली चंद गैर मनकूला जायदादों को जब्त करने का अमल शुरू कर दिया गया है। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि
ULP ایکٹ کی دفعہ 2G اور 25 کے تحت جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ ملیٹنٹوں یا ان کے مددگاروں کو پناہ نہ دی جائے۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ DGP دلباغ سنگھ نے نوجوانوں سے تشدد کا راستہ ترک کرنے کی اپیل کی ہے۔ سری نگر میں پولیس شہدائے یادگاری فٹ بال فائنل میچ کے موقع پر DGP نے کہا کہ تشدد نے پہلے ہی کئی جانیں لے لی ہیں اور خاندانوں کو تباہ کیا ہے۔ سنگھ نے کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ پرامن اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بندوقیں اور گرینیڈ چھوڑ دیں اور اپنے ہاتھوں میں بال اور بیٹ لے لیں۔ JK بینک ٹیم نے JK SPDC کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دے کر ٹورنامنٹ جیت لیا۔ DGP نے شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نوجوان بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی بھی غلط راستوں پر چل رہے ہیں، ہمارے پڑوسی کے اکسانے پر ہاتھ میں بندوق اور پسٹل لے کے گھومتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کی جان لیتے ہیں، یہ راستہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ یہ راستہ تباہی کا ہے، بربادی کا ہے، ان کی اپنی بربادی کا ہے، ہمارے سماج کی بربادی کا ہے، ہمارے لوگوں کی بربادی کا ہے۔ اس راستے کو ترک کر کے امن کی طرف بڑھنے کی، ترقی کی طرف بڑھنے کی اور اپنے سماج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے میں ان کو اپیل کرتا ہوں۔ DGP دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے ملیٹنٹوں اور ان کے OGW نیٹ ورک کو کافی حد تک کم کیا ہے، لیکن جب تک ہتھیار موجود ہیں پرتشدد سرگرمیوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بار بار گرینیڈ حملوں اور عوامی نمائندوں کی ہلاکتوں پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے DGP نے کہا کہ پولیس اس طرح کے حملوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ جب تک بندوق گرنیڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ اگر ایک بھی گرنیڈ ہے تو درجنوں لوگوں کو انجر کرنے کی، کسی کی جان لینے کی کیپیسٹی اس آدمی کے ہاتھ میں ہے جو ہاتھ میں گرنیڈ لے کے چلتا ہے۔ جو بندوق لے کے چلتا ہے، بہت لوگوں کو مارنے کی، بہت لوگوں کو نشانہ بنانے کی کیپیبلٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک بندوق ہے، گرنیڈ ہے، گولی ہے، تب تک اس طرح کی قتل و غارت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان کا نمبر برابر پہلے سے سال در سال کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایونٹس جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں، مگر کارروائیاں ابھی بھی ہوتی ہیں جو مذمت کے لائق ہیں، جس کی ہم نندا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیوں کو روک تھام کی جائے۔ اسی لیے جو پریونٹیو ایکشن ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں OGW جہاں ان کا سپورٹ سسٹم ہے جو ان کو ملٹنسی کو چلانے میں، زندہ رکھنے میں جو ان کو جو مدد کرتا ہے، اس کو ہم لوگ چیک کرنے کے لیے کارروائی کر رہے ہیں اور یہ کارروائی جاری رہے گی۔ دیکھیے جہاں جہاں پر جس طرح کی اسسمنٹ ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کی، اس کے مطابق سیکیورٹی کے انتظام جگہ جگہ پر کیے گئے ہیں، ہر ضلع میں کیے گئے ہیں۔ جہاں آگے بھی ضرورت ہوگی ان انتظاموں کو اور بھی پختہ کیا جائے گا۔ ضلع گاندربل میں کنگن کے ہری گنی ون علاقے کے قریب ایک ٹیمپو ٹریولر پلٹ جانے سے 2 سیاحوں کی موت ہو گئی۔ سری نگر لہ شاہراہ پر پیش آئے اس حادثے میں 24 سیاح زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ حادثے کا شکار ہوئی یہ گاڑی سیاحتی مقام سونمرگ سے واپس سری نگر جا رہی تھی۔ حادثے کی خبر ملتے ہی مقامی لوگ، پولیس اور میڈیکل ٹیمیں جائے واردات پر پہنچی۔ انہوں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے فوری طور پر ٹراما اسپتال کنگن منتقل کیا گیا۔ ضلع ادھمپور کے رام نگر تحصیل میں سندھل کے علاقے میں ایک ایکو کار گہری کھائی میں گرنے سے 5 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ مہلوکین میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ 3 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ یہ گاڑی رام نگر سے کیلا جا رہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی اور گہری کھائی میں جا گری۔ اس حادثے کی خبر ملتے ہی SDPO رام نگر کی سربراہی میں پولیس کی ٹیم جائے واردات پر پہنچی۔ انہوں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ وہیں ادھمپور کے فتالہ میں 2 گاڑیوں کے بیچ ہوئی ٹکر میں 2 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ زخمیوں کو ضلع اسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا ہے۔ حادثے کی خبر ملتے ہی پولیس جائے واردات پر پہنچی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ وہیں جموں پونچھ قومی شاہراہ پر بمبر گلی علاقے میں ایک کار اور تیل کے ٹینکر کے بیچ ٹکر ہوئی۔ حادثے میں کار میں سوار عبدالضیاء
اور ان کے ساتھ موجود 2 خواتین زخمی ہو گئیں۔ اس دوران ناجائز حادثے سے گزر رہی فوجی جوانوں اور افسر نے زخمیوں کو کار سے نکالا اور اپنے کیمپ میں ان کا علاج کرایا اور ان کی جان بچانے میں اہم رول ادا کیا۔ فوج کی اس فوری کارروائی کی زخمیوں اور ان کے رشتہ داروں نے ستائش کی ہے، انہوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا۔ جموں کشمیر شرناتی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں نے کٹھوعہ میں اپنے مطالبات کو لے کر نعرے بازی کی۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ 1947 سے آج تک انہیں ون ٹائم سیٹلمنٹ سے محروم رکھا گیا ہے۔ احتجاجیوں نے کہا کہ اگر موجودہ حکومت ان کے مسائل حل نہیں کر سکتی ہے تو وہ واپس پاکستان جانے کو مجبور ہو جائیں گے۔ جو ہم ڈسپلیس پرسن ہیں 1947 جب وہاں سے کیندر سرکار اور جموں کشمیر سرکار کا ہمارے ساتھ انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ ہماری مانگ ہے کہ ہمارا جو پارلیمنٹری کمیٹی نے 30 لاکھ روپے کی منظوری کی ہے ڈسپلیس پرسن کے لیے، 5.5 لاکھ روپے ہمیں ملا ہے، باقی ہمیں دیا جائے۔ اور دوسرا جو ہماری پہاڑی بولی جو اس کا آرکشن ہے ہمیں دیا جائے۔ یہ گورنمنٹ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے ہمیں کم سے کم ایسا کام کرو 36,384 فیملی کو پاکستان بھیج دو، وہاں پہ کم سے کم پاک آکوپائڈ کشمیر۔ یہ کب تک 70 سال میں ہمیں سلوشن تو بتاؤ، ہم سٹیزن کب بنیں گے ہندوستان کے؟ یہ آسان کام ہوگا کہ 36,000 پریواروں کو دھکا مار کے پار دے دیں، ویسے لڑنا پڑے گا، ایسے لڑائی نہیں ہوگی، جو مر گئے بچ کے پہنچیں گے۔ ہم آج ساری پبلک کے سامنے میں ڈکلیئر کرتا ہوں اگر پاکستان گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے ہم پاکستان جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دربشالہ کشتواڑ میں 850 میگا واٹ ریٹل پاور پروجیکٹ پر پھر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے مانگ کی ہے کہ پروجیکٹ میں مقامی افراد کو نوکری دی جائے اور ان کے دیگر مطالبات کو پورا کیا جائے۔ 9 برس قبل اس پروجیکٹ کا کام اس وقت رک گیا تھا جب بی جے پی لیڈران نے مقامی افراد کو نوکری نہ دینے کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ اب پروجیکٹ پر کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے، مگر لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ مقامی افراد کے بجائے غیر مقامی لوگوں کو کام دیا گیا ہے۔ لوگوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ پر چند بی جے پی لیڈران کے اشاروں پر کام کرنے اور منظور نظر افراد کو روزگار دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ تحصیلدار دربشالہ نے مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بات کہی ہے۔ مان لیا تب ٹھیک، نہ مان لیا تو 5ویں دن ہماری پھر بہت بڑی ہڑتال ہوگی، مگر پھر یہ صرف 100 آدمی کی نہیں ہوگی، کم سے کم یہ 1000-2000 لوگ کی بھی ہوگی، کیونکہ جب تک ہمارا کوئی کام نہیں بنے گا تب تک ہم ہڑتالوں پر مجبور کریں گے۔ تو اگر ہمارے کام بنیں گے تو ہم کبھی بھی کسی کے ہڑتال نہیں کریں گے اور کمپنی کا پورا ساتھ دیں گے۔ بات کرتے ہیں ان کی جو باتیں ہیں ہم کنوے کریں گے سی او صاحب کو، آگے ہمارے اوپر آفیشلز کو کنوے کریں گے، وہ آگے جو بھی پروسیس ہوگا اس کو کرا کر کے ہم آپ کی باتوں کو آگے رکھیں گے ان کے سامنے۔ دیکھیے ہم ابھی کچھ اپنے اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، ہم جو بھی کریں گے پہلے آپ کی بات کو پتہ کریں گے، آپ کی کیا ایشوز ہیں، ان ایشوز کو اپنے اوپر مینجمنٹ کے پاس رکھیں گے اور جو ان کا سولوشن آئے گا آپ کو بتائیں گے کہ جو بھی ان کے گریونسز ہیں۔ میں نے آن سپاٹ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں ہمارا نائب تحصیلدار پٹواری اور کچھ لوگ کمپنی کے بھی ہوں گے، تو 4-5 دن ان کو ٹائم دیا گیا ہے، جو ہماری ڈی سی صاحب کی بھی ڈائریکشن ہے کہ ان کو ایک کمپائلڈ کر کے رپورٹ جو دیں گے وہ ہم ڈی سی صاحب کو سبمٹ کریں گے اور ساتھ میں کمپنی کو بھی رپورٹ دیں گے۔ جموں کشمیر کے سابق ایل جی ستیہ پال ملک کے رشوت کی پیشکش کے الزام کی سی بی آئی جانچ ہوگی۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے خود اس پورے معاملے کی منصفانہ جانچ کے لیے سی بی آئی کو جانچ کی سفارش کی ہے۔ ستیہ پال ملک نے الزام لگایا تھا کہ جب وہ جموں کشمیر کے گورنر تھے تو انہیں بڑے صنعتی گھرانوں کی فائلیں کلیئر کرنے کے عوض 300 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی تھی، تاہم انہوں نے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا اور وہ سودے منسوخ کر دیے تھے۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو قوموں اور تہذیبوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ کشمیر یونیورسٹی میں آج ایک عالمی اردو سیمینار کے موقع پر ماہرین نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ فاصلاتی تعلیم نے قومی کونسل برائے فروغ اردو کے تعاون سے اس 2 روزہ عالمی سیمینار کا اہتمام کیا تھا۔ عالمی سطح پر اردو تحقیق کی سمت اور رفتار کے موضوع پر منعقدہ اس سیمینار میں ملک کے علاوہ بیرون ملک کے کئی مندوبین نے آن لائن شرکت کی، ان میں مصر، ترکی، موریشیس، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے مندوبین شامل تھے۔
प्रोग्राम का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि तहक़ीक़ व तनक़ीद की सतह पर जो नुमायाँ तब्दीलियाँ वाक़ा हो रही हैं, हमारे नव आमोज़ रिसर्च स्कॉलर्स उनसे आगाह हों, उनसे मुस्तफ़ीद हों, और जो तहक़ीक़ की सतह पर नई हिकमत अमलियाँ अपनाई जा रही हैं, तहक़ीक़ की नई अखलाक़ियात वज़ा की जा रही हैं, तो इसका मकसद, इस सेमिनार का मकसद ये है कि हमारे स्कॉलर्स जो हैं उन चीज़ों से वाक़फ़ हो जाएँ। कौमों को और फ़िरक़ों को आपस में मिलाने वाली ज़ुबान है, जिसका एक अहम रोल बरतानिया में अदा किया जा रहा है। और आज के सेमिनार ने यह बात साबित कर दी है कि उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोग और उर्दू जानने वाले लोग इस कारवां को आगे ले जा रहे हैं, जिसके लिए ये इदारा बहुत ही मुबारकबाद का हामिल है। एक तरफ जहां वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है, वहीं बडगाम में सीएमओ दफ्तर के अहाते में मौजूद डंपिंग साइट से लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारी फैलने का खतरा लाहक हो गया है। इंतजामिया टीबी डे तकरीब की तैयारी में थे, वहीं इस डंपिंग साइट से रात भर धुआं निकल रहा था। इस वजह से आसपास के लोग परेशान थे। इन अफराद ने सीएमओ ऑफिस के अहाते में एहतजाज किया। उनका कहना था कि सीएमओ दफ्तर और डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर से निकलने वाली गंदगी को यहाँ पर जलाया जाता है। लोगों ने इंतजामिया से अपील कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। इस मामले को लेकर जब न्यूज़ 18 उर्दू ने सीएमओ बडगाम से पूछा तो उन्होंने कहा कि जगह की कमी की वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द कोई मुतबादिल इंतजाम किया जाएगा। जो है सीएमओ ऑफिस है, यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस का सेंटर है, जो आज टीबी दिन मना रहे हैं, बडगाम को टीबी मुक्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, अक्सर ये जलाते हैं। यहाँ पर जो भी इनको वेस्टेज निकलता है, दवाई निकलती है, एक्सपायरी निकलती है, या जो पेशेंट लोग आते हैं उनके ट्यूब्स निकलते हैं, वो ये जलाते हैं। रात भर ये जलता रहा, आज भी हम सो नहीं पाए। आप पीछे देखिए, पीछे हमारे मकान है यहाँ पर। इससे पहले भी हमने सीएमओ साहब से वर्बली कहा, सर आप ये मेडिकल वेस्ट यहाँ मत जलाइए, हमें बहुत तकलीफ़ होती है इसकी फ्यूम से, जो ये जहरीली गैस बनती है इससे, तो ये टाउन में ये नहीं जला सकते। लेकिन सीएमओ साहब ने सुबह कहा, जाओ जहाँ जाना है यहाँ से वैकेट करो, मुझे जलाना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए जो ही हम इसके लिए सोच रहे हैं कि ये जो वहाँ पे हमारा जहाँ पे हम ये अपना जो निकलता है, वेस्ट निकलता है, कुछ निकलता है इस सिलसिले में, तो उसका मुतबादिल हम सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के बाद वो भी हम कर रहे हैं। शोपिया के दशनू इलाके में कई बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इलाके में मुकीम 200 से ज़्यादा ख़ानदान बेहतर सड़क राब्ते से महरूम है। यहाँ आज भी दुल्हन को पालकी और मरीजों को चारपाई पर ले जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कई मरतबा हुकाम के नोटिस मिलाने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। लोगों को 1.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके मेन रोड तक पहुंचना पड़ता है। मौसम सरमा में लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। भारी बर्फबारी के बाद अगर यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल मुंतकिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लोगों का इल्ज़ाम है कि मकामी इंतज़ामिया ने भी उन्हें दहाइयों से नज़रअंदाज कर दिया है। अदालत मज केस तथ जून केस दोप तह दिमो वो सड़क पत बन कदल लकट लकट कदल ठेकेदारों नी बिल कड़ित आज ब्रो 2 वरी 3 वरी गई कम चलान अड़स यह सड़क कड़म यह पाने कड़म ठेकेदारों नी बिल कड़ित ये बराई थो कर गाड़ी हसा तरस तमिस पे आब मज वो तरन बाकी कह फैसलिटी ये अकिस अकिस मकानस में 4 घर ये 6-7 थमित फीस 6 रेतन बिहित वो शीन मौजूद ये मजूर कर 6 रेतन मज घर पकना शुरन हूं फीस पकना कर DC सोबस तो सारे गुजारिश कर सैनिस गाँव कुन यीत तवज्जो। कठुआ के बनी में मिडिल स्कूल को ताला लगा रहने के मामले में महकमे तालीम ने कार्रवाई की है। मकामी लोगों की जानिब से बच्चों की तालीम मुतासिर होने की शिकायत की गई। CEO कठुआ ने न्यूज़ 18 को बताया कि मज़कूरा असातिज़ा को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्होंने लापरवाह असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। बच्चे आ रहे हैं, स्कूल में आए हैं तो टीचर कोई नहीं है। फिर मैंने उनको बोला कि यहाँ 12 बजे तक वेट करो, उधर ही आता कोई ना कोई आ जाएगा। दूर का टीचर है, एक तो नज़दीक का है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आया कि चाहे तो उधर से ट्रांसफ़र होने चाहिए, चाहे नया टीचर आना चाहिए वहाँ। तो आपको पता है सरकार ने अभी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी ऑनलाइन की है, इनकी डेली मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसलिए ये हमारे संज्ञान में है और हम सख्त एक्शन इस पर लेंगे। जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एज ए स्टेक होल्डर ऑफ द चेयर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी टीचर बच्चों के साथ कह लो कि नॉन परफॉर्म कैटेगरी में आएगा।
फन, सकाफत और थिएटर को फरोग के लिए काम करने वाली एक NGO सामूह थिएटर ने दर्जनों फनकारों और शायरों को उनके मुतल्लिका शोबों में खिदमत अंजाम देने पर तहनीत पेश की। जम्मू में एक तकरीब का इनकाद किया गया। साबिक नायब वज़ीर आला कुवेंद्र गुप्ता मेहमान ख़ुसूसी थे। सीनियर सहाफ़ी सुहेल काज़मी ने तकरीब की सदारत की। मुक़र्रिरीन ने कहा कि आर्ट और कल्चर को नौजवान तबके तक पहुँचाने की ज़रूरत है ताकि नामवर शायरों और दीगर फनकारों की विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। वो आर्टिस्ट जिन पे शायद गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ती है, उनको इनकरेज करने के लिए ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कल्चर से जुड़े हैं उनका लोगों को पता चले और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो समाज में आगे बढ़े और उनको देख के बाकी बच्चे भी एक पॉजिटिविटी की तरह कल्चर के माध्यम से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की खिदमत कर सकें। जिला गांदरबल के हरिगनीवन गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बनाई गई नई इमारत का कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकाम ने 7 सालों से इस बिल्डिंग को नज़रअंदाज कर रखा है। इस 2 मंजिला इमारत की तामीर का तकरीबन काम साल 2014 में मुकम्मल हो चुका था, सिर्फ कुछ काम बाकी है। मुतल्लिका हुकाम की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई। लंबे अरसे से इमारत ऐसी ही पड़ी रहने के बायस उसे बहुत नुकसान पहुंचा है। कुछ अनासर अपने मज़मूम मकासद पूरे करने के लिए इस इमारत को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अहदेदार ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया 2016 में पैदा हुए नामसाइद हालात के नतीजे में तामीराती सरगर्मियां रुक गई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा साल तक इल्तवा का शिकार इस मंसूबे को पूरा कर दिया जाएगा। आप इसमें अंदर जाके देखो, सिगरेट, बीड़ी, खिड़की विड़की सब कुछ इसमें ख़त्म है। कई बार हम यहाँ पे CO साहब के पास भी गए, प्रिंसिपल साहब के पास भी गए, तो हमने उनसे बहुत बातचीत भी की, एप्लीकेशन भी लेके गए, लेकिन हमारे पास कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। लोग सभी तकरीबन 20-25 बार हम चले गए हैं इसके पास, प्रिंसिपल साहब के पास, तो उन्होंने यही कहा कि मैं बार बार एप्लीकेशन देता हूं लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैं यही चाहता हूं गवर्नमेंट इंतजामिया से कि आप आइए और तवज्जो दीजिए इस बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि हमारा यूथ जो है इस समय वहाँ यहाँ पे सिगरेट वगैरह पी रहे। हमने भी देखा कि 2 कमरे हमने देखे वहाँ पे, जहाँ पे जो भी कुछ डिस्ट्रॉय हुआ था, जिस चीज़ों की डैमेज हुई थी, वो स्कूल मैनेजमेंट ने रखे 2 कमरे में पूरे भरे पड़े हुए हैं वहाँ पे। इसलिए अब हमने इस बिल्डिंग को अंडर लैंग्वेज प्रोजेक्ट इसमें डाला है और डिपार्टमेंट में इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की कि इसको जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए। पुंछ के मेंढर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोया वेस्ट में ज़ेर तालीम बच्चे 11 बरसों से एक दरख्त के साए में तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल का साजो सामान और बैठने के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया स्कूल में ही तामीर एक खस्ताहाल बैतुल खुला में रखी जा रही है। लोगों ने बताया कि स्कूल में इमारत की तामीर 2011 में शुरू की गई थी। 1 दहाई से इमारत पर लेंटर ही नहीं डाला गया है। बच्चों के बैठने के लिए ना ही कोई कमरा तामीर किया गया और ना ही स्कूल में तैनात 2 असातिज़ा के लिए साजगार जगह बनाई गई। वालिदैन ने बताया कि बारिश के दौरान अक्सर इनके बच्चों की किताबें और वर्दियां ख़राब हो जाती हैं। लोगों ने तमाम मुतल्लिकीन से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। जब बारिशों में यहाँ होते हैं तो हमारी किताबें भीगने के बाद ख़राब हो जाती हैं और हमें माँ बाप जो है हमारे जो पेरेंट्स हैं वो दोबारा किताबें लेके देते हैं। और बच्चे मैंने देखे यहाँ पे कुछ 43 बच्चे हैं, तो मुझे देख के ये बड़ा अफसोस हुआ। लिहाजा मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। 3-4 कमरे से 4 कमरे ने 3 उठाए तो ले के अपनी जगह मास्टर इस तरह से होगी और स्कूल न डरा जाए, जिस ठेकेदार से इन्हें ली तो चलेगी। लद्दाख में NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर चंचल कुमार ने LGR के माथुर से मुलाकात की। उन्होंने UT में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के हवाले से तबादला ख्याल किया। कुमार ने ज़मीन हासिल करने, करगिल संस्कार रोड और जोजिला टनल प्रोजेक्टों के हवाले से दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। LG ने करगिल पद्म रोड को सरमा में भी खुला रखने पर कॉरपोरेशन की सताइश की। उन्होंने मकामी ठेकेदारों को काम पर लगाने और उनकी सलाहियतों को बढ़ाने पर जोर दिया। कुमार ने करगिल संस्कार रोड और मीनामर्ग में जोजिला टनल के ईस्टर्न पोर्टल का भी मुआयना किया। संस्कार रोड के भी जो 8 पैकेजेस हैं उसके भी प्रगति की हम लोगों ने रिव्यू किया है, समीक्षा की है और देखा है कि उसमें जल्दी से जल्दी वो काम हो। जैसा आप लोगों को देखा होगा, इस साल हम लोगों ने विंटर में भी पूरे साल इस रोड को चालू रखा था, जिससे कि लोगों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, सब्जियाँ हैं, वो जा पा रही थी और लोगों ने उसका स्वागत किया है। हम लोग का प्रयास रहेगा कि काम तेज़ी से हो और इसके साथ रोड भी रहे।
सेक्रेटरी टूरिज्म काचू महबूब अली ने करगिल में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में मुनक्किदा मीटिंग में FCS एंड CA लद्दाख के डायरेक्टर सेरिंग मोतब, CEO KDA अब्दुल गफ्फार, लद्दाख कल्चरल एकेडमी करगिल के डिप्टी डायरेक्टर नज़ीर हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म सईद आगा तोहा, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर करगिल रज़िया बानो और डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट इफ्तिखार हुसैन मौजूद रहे। तमाम बकाया बिलों को जमा करने की हिदायत दी गई। ज़िले में जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया गया। गुलबर्ग में अपनी नवियत का पहला मेगा स्वीप इवेंट का एहतमाम किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर BK पॉले मेहमान खुसूसी थे। DC बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार, CEO गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलाम जिलानी जरगर और दीगर मौजूद रहे। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इसमें शिरकत की। उन्होंने पेंटिंग के जरिए वोट की अहमियत को उजागर किया। बच्चों ने वोट की अहमियत को लेकर मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी सकाफती प्रोग्राम पेश किए। पोले ने कहा कि हर एक को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आज यहाँ ये गुलमर्ग में पहली बार प्रोग्राम हुआ है। हमें आज स्टूडेंट्स को पहली बार मौका मिल रहा है कि हम अपना एक जो टैलेंट है उसे एक्सप्रेस करें। तो हम लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, इसको ज़ाया न करें। और हम स्पेशली अपने टीचर्स को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें ये हिम्मत दी अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने की। इनके बगैर ये काम अधूरा है। आज की इस प्रोग्राम में काफ़ी बच्चे शिरकत किए हैं जिनकी उम्र जो है 14 से 18 या 20 के करीब की है, जिन्होंने अभी वोटर बनना है, वोटर बनने के वो कगार पर है। डेफिनेटली जो है ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। गुज़िश्ता साल बडगाम में एक ऐसा ज़िला बना जिसे TB से पाक ज़िला करार दिया गया। अपनी इस कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए ज़िला बडगाम में हेल्थ अमला लगातार काम कर रहा है। बडगाम में 135 TB मरीज़ हैं, उनका इलाज जारी है। इन बातों का इज़हार डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस अफसर डॉक्टर अदफर ने किया। टेस्टिंग जो है, हमारी स्क्रीनिंग है, वो बहुत ही लास्ट ईयर 2021 में हमने तकरीबन 2 लाख से ऊपर, तकरीबन 2.5 लाख पॉपुलेशन को हमने स्क्रीन किया, टेस्ट किया। उसमें 2 ही पॉजिटिव आए हमारे। तो हमारा आगे भी यही लाहे अमल होगा। TB फ्री पूरी कंट्री में इसको लास्ट ईयर TB फ्री सर्टिफिकेशन मिली। इस सिलसिले में चूंकि ये लेगेसी हमको आगे भी लेनी है, हम एक्टिव केसेस फाइंडिंग जो हमारा मिशन है वो हम छोड़ नहीं रहे हैं। जिला कुपवाड़ा को TB पर काबू पाने के लिए नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। कुपवाड़ा में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान DDC चेयरमैन इरफान पंडित पूरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी भट्ट, चीफ मेडिकल ऑफिसर और दीगर ने इस पर तमाम मुतल्लिकीन को मुबारकबाद पेश की है। प्राउड मोमेंट। पहले सबसे पहले जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस यहाँ टीम है डॉक्टर रमज़ान की क़यादत में, हमारा जो आज 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आउट ऑफ 203 में, उसमें डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये इनकी अनगिनत मेहनतें, इनने बहुत ही मेहनत की है इसके लिए, और बहुत ही अच्छा एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए, पूरे जितने भी कुपवाड़ा के लोग हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। जिला बारामुल्ला को TB से पाक करने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। डिग्री कॉलेज सुपुर में एक तकरीब के दौरान ADC बारामुल्ला और CMO ने कहा कि इस सिलसिले में लोगों में बेदारी पैदा की जा रही है। वाज़ेह है कि ज़िले को TB को कंट्रोल में करने के लिए कांसे का तमगा मिला है। स्क्रीनिंग है ज़्यादा की थी, 2015 से ज़्यादा की थी लास्ट ईयर। इसका भी मतलब है कि हमने जो टारगेट हमें अचीव करना था हमने किया था, मगर वो फिर भी आफ्टर न वेरिफिकेशन बाय CTD NIOT बाय द स्टेट ये 20% ही देखा गया है कि हमें डिक्लाइन हुआ है। लोग अपनी जान से आदो बढ़ते हैं हर साल, तो इसको किस तरह हम इसका कला कमा कर सकें, और जो हमारी कोशिशें हैं वो कैसे हम सब मिलकर कोशिशें करें, चाहे हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी हो, हमारे हेल्थ से वाबस्ता लोग हों।
इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एंड एनवायरनमेंट ने ललदत ऑडिटोरियम भदरवा कैंपस में पानी का आलमी दिन मनाया। इस प्रोग्राम का मकसद शुरका को पानी की अहमियत के बारे में आगाह करना और मीठे पानी के वसाइल के पायदार इंतजाम की वकालत करना है। मुकर्रिरीन ने ज़िंदगी को बरकरार रखने में पानी की मजमूई अहमियत पर रोशनी डाली और आबी वसाइल को बचाने और बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर जोर दिया। तकरीब के दौरान वीडियो पैगामात, दस्तावेजी फिल्में और मुख्तसर फिल्में भी पेश की गई। मटन अनंतनाग की मशहूर मजहबी शख्सियत पीर मोहम्मद सलीम कादरी मुख्तसर अलालत के बाद GMC अनंतनाग में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके मटन में अदा की गई। लोगों की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम की वफात पर कई दीनी, समाजी, सियासी शख्सियात ने दुख का इजहार किया है और लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। मीरवाइज कश्मीर, मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, NC लीडरान डॉक्टर बशीर वीरी, सकीना A2, PDP लीडरान मोहम्मद सरताज, अब्दुल रहमान वीरी, BJP नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ, DDC मेंबर एडवोकेट तसद्दुक हुसैन ने ताज़ियत का इजहार किया। वहीं शोपियां के ADC मुश्ताक अहमद समनानी ने मिनी सेक्रेटरीट शोपियां के अहाते में शाहतूत का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। सेरिकल्चर ऑफिसर शोपियां मंजूर अहमद राथर ने बताया कि महकमे सेरिकल्चर का इस साल ज़िले में 22,000 शाहतूत के पौधे लगाने का हदफ है। इसका मकसद आलूदगी को रोकने और माहौल को बचाने के अलावा रेशम के कीड़े के लिए शाहतूत के पौधों की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि महकमे शाहतूत की काश्त को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहा है। वहीं लेह में नुब्रा सब डिवीजन के ताकशी इलाके में स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद किया गया। नेहरू युवा केंद्र की जानिब से मुनक्किदा इस इवेंट में 25 मकामी यूथ क्लब ने शिरकत की। मकामी यूनिट के फौजी अफसरान मेहमान खुसूसी थे। वॉलीबॉल टूर्नामेंट और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। खेल की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के मकसद से ये इवेंट मुनक्किद किया गया। लोगों ने नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर तजमुल आरा का शुक्रिया अदा किया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा ने 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मसनूई ज़हानत और फूड प्रोसेसिंग में मशीन लर्निंग पर मबनी उभरते रुझानात पर मुफस्सल बहस की गई। यूनिवर्सिटी के डीन रिसर्च प्रोफेसर AH मोन ने कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास की सदारत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़वाइद और फूड प्रोसेसिंग में इसके इस्तेमाल पर रोशनी डाली गई। डीन स्कूल ऑफ साइंस प्रोफेसर MA खुरू मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शोबे को मुबारकबाद दी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किरदार पर रोशनी डाली। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर मोहित गेरा ने एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर T रब्बी कुमार, कंजर्वेटर साउथ सर्कल इरफान अली शाह, DFO अवंतीपुरा डॉक्टर शेख महराजुद्दीन और दीगर अफसरों के हमरा गोसानी नाड पामपोर फॉरेस्ट एरिया का दौरा किया। उन्होंने गोसानी नाड वेस्ट्रोन 4 किलोमीटर मसाफत वाले ट्रैक का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा इस ट्रैक शुरू होने से वेस्ट्रोन टूरिस्ट स्पॉट को काफ़ी फ़रोग़ मिलेगा। देवसर के DDC मेंबर इश्तियाक अहमद गनाई ने गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर देवसर को एक USG मशीन फराहम की है। उन्होंने अस्पताल का दर्जा बढ़ाने और उसे मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर महकमे सेहत का अमला और DDC मेंबर के वर्करान मौजूद थे। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। BJP के OBC मोर्चे की जानिब से डाक बंगला चोलगाम कुलगाम में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। सतह करीबी से नीचे गुजर बसर करने वाले कारीगरों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस का मकसद कारीगरों को उनके हकूक दिलाना है। प्रोग्राम में OBC UT के सदर कश्मीर के इंचार्ज सज्जाद कुमार, साउथ कश्मीर संगठन मंत्री वीर सराफ के अलावा आबिद खान मौजूद थे। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।